Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of my podcast series, The Other Side. My name is Kuratullah Nasir and I have another guest with me. She's also a very special girl. Aksa, how are you? I'm good. आप कैसी हैं? I'm good. अच्छा, Aksa जो है, Aksa is a physiotherapist. She's a doctor and she's also a fitness trainer at Ironbox. Yes. So and also Aksa जो है वो she's expecting she's in due on Like in a week or two. in a week or so. And still she's here, recording this podcast with me. So हम आपको इस podcast से ये बताना चाहते हैं कि अक्सा कौन है पहली बात, and what her struggle has been, and moreover जो ये अभी the period she is going through, उसमें बहुत सी औरतें जो हमारे मुल्क में हैं उनके साथ ये होता है कि they are asked to sit down at home and don't do anything. But she has continued her training, fitness training, and she is still doing it. Yes, she's also a fitness coach as well. So let's ask Aksa about her journey. So Aksa, पहले तो आप मुझे ये बताएं, तो आपको मोटिवेट किसने किया कि आप फिजियोथेरेपी से इस वाले जो करियर चॉइस है उसमें आए? So just tell me कि Aksa, how did you end up as a trainer or a coach, fitness coach basically? Actually, this journey started 5 to 6 years back when I was in hostel. So I really want to do the thing जिसका कोई मकसद हो, ठीक है, जिसका आपकी बॉडी को फायदा हो. At the end, when you are in your 40s or 30s, at the end materialistic चीजें सब रह जाएंगी पीछे. What your body needs basically. So basically fitness and physio are interlinked somehow, because physiotherapist, I'm a doctor of exercise, so I have to treat people with exercise rather than the medicines and all. Okay. So exercise, actually I deal exercise as a hobby. Okay. I love to do exercise. I love to educate women, especially women जो कि obesity rate उसमें में ज़्यादा है, ठीक है, and everyone say कि you can't do gym, you can't lift weight. Why? Women body same, anatomy same है, male की भी, female की भी. So I really want to educate women to do exercise, especially in Pakistan. Okay. I have been training since 5 to 6 years to women only. And now in this prepartum phase, I have been through it's my 9th month, and I was working out throughout with weight training, जो कि सब मना करते हैं, ठीक है. I will tell the reason के why. और I love to educate women कि आप pregnancy में workout करो. क्यों करो? बहुत ज़रूरी है मेडिकल पर्पज से भी और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए. और I lead HIIT, high intensity interval training. डिफरेंट एज ग्रुप के वुमेन्स के लिए डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, मॉडिफिकेशंस आर अ लॉट. यू शुड नो कि आपने किसके पास जाना है. अच्छा, और अक्सा एक बड़ी मजे की आपने बात बताई थी कि आई टेल यू कि अक्सा जो है वो व्हेन शी स्टार्टेड दिस जर्नी, सो शी वाज एट हर हॉस्टल, और वो अपने ही वहाँ जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह थी उसको स्टार्ट में शी स्टार्टेड गिविंग कोचिंग and she ended up as a trainer. So guys, you have to start from the scratch to become something. You have to make a first move basically. Exactly. But evidence based practices matter. ठीक है, आप पहले दिन से अपनी रिसर्च करके अपना प्लान बना के करो, ठीक है. आपकी जर्नी एंडलेस है, ठीक है. आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि आप बुक्स से अपनी बॉडी का हाउ नो करके इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो. दूसरी बात होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, कि आपने उसको सेल्फ पे एक्सपीरियंस की, ठीक है. इफ आई से टू समवन डू द स्क्वाट्स, इफ समवन डोंट नो कि स्क्वाट्स करता क्या है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के किस पार्ट को टारगेट करता है, आपने खुद उसको फील नहीं किया ना, तो यू कांट नो कि हाउ इट फील्स. हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब स्क्वाट्स का वो आया था ना एक एरा, तो सारे कहते थे स्क्वाट्स करो बस. उसके प्रोज एंड कॉन्स भी थे कि भाई आपकी लेग्स जो है वो डी शेप हो जाती हैं, आपकी मतलब बहुत सारी लेडीज के लिहाज से. इवन पीपल गॉट फोबिया कि भी हमने नहीं करना, इससे जो है वो बड़ी बॉडी लेग्स की शेप खराब हो जाती है, इस तरह हो जाता है. तो दैट्स ऑल कि यू अगर आपको कोई मसला है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको दांत का मसला है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे, ठीक है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, ठीक है. इसी तरह पाकिस्तान में वर्कआउट इन द प्रेगनेंसी एक फोबिया है. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मेजर. मैंने ये फील किया कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योर बॉडी डोंट अलाउ, ठीक है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई आप यू डोंट वॉक फ्रीक्वेंटली, डोंट क्लाइंब अप द स्टेयर्स. व्हाई? उफ, ये बहुत ज्यादा मैंने सुना हुआ है कि प्लीज, मतलब स्टेयर्स मत छोड़ो. या
अब देखिए ना, अब मैं व्हाई बताती डू दे से दैट? मैं बताती डॉक्टर्स आपकी साइकी पढ़ लेते हैं। अब आप पेशेंट जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है ना, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेता। डॉक्टर कहता है कि भाई आप सेफ जोन में रहो, डोंट डू दैट, ठीक है। इसी तरह अब एक्सरसाइज है, अब माय डॉक्टर आस्क मी, लाइक आई हैव चेंज मल्टीपल डॉक्टर में, जो गायनेकोलॉजिस्ट मुझे एक के पास दूसरे के पास में जाती रही, आई जस्ट वांट टू फाइंड कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछती एक्सरसाइज करती हो? करती हूँ। कैसी करती हूँ? मैंने कहा जितनी आप सोच सकती है, मतलब हैवी करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को आदत थी, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लिफ्ट करना, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, उसे डिफरेंटली कैरी करती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहा होता है, ठीक है। आपका हार्ट बीट आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। आपका नोजिया आपकी कंट्रोल में नहीं होता। इफ़ योर बॉडी अलाउज, करो एक्सरसाइज, एटलीस्ट वॉक करो, बट डोंट कि आप बेड रिडन मत हो जाओ। आपकी बॉडी ने एक वेट होल्ड करना है, आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आनी है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट विद फिजिकल चेंजेस बेसिकली। एंड आई वांट कन्वे टू पीपल, स्पेशली वुमेन, कि एक रेस होती है ना, फॉर एग्जांपल मैराथन रेस, तो इट्स अ मैराथन जो आपका 9 मंथ्स है, इट्स अ कंप्लीट ईयर। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर नहीं 4th होते हैं। एक जो अभी आने वाला है, दैट इज पोस्टपार्टम 3 मंथ्स। इसमें 3 मंथ्स तक बेबी को नहीं रियलाइज होता कि इट्स इन मदर्स वॉम्ब और नॉट, ठीक है। उसके लिए भी प्रिपेयर करना, ना कि सिर्फ प्री पार्टम पोस्ट पार्टम। अब आई एम एट दैट स्टेज कि एवरीवन आस्क बेबी की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा मैंने अपनी की, क्या मतलब? मैंने कहा आई गॉट ऑल द होम जिम इक्विपमेंट्स, ठीक है। और आई गॉट, क्योंकि कोर बेसिकली आपका जो पेट है ना, वो उसको होल्ड करता है। सबसे ज्यादा लेग्जिटी आप कोर लूज करता है, इसकी वजह से आपकी बैक में पेन, ये सब चीजें आती हैं। आपको पोस्टपार्टम में मैंने देखा है कि लोग फैट लॉस की तरफ चले जाते हैं बहुत जल्दी, क्रैश डाइट, मदर फीड से अवॉइड, बहुत सारी रीजन हैं, बट वहाँ पे जाके आपको रिहैब की जरूरत है। That's the physio comes again in my fitness, so it's a circle. आप एक तरफ तो अक्सर ये बहुत ज्यादा होता है कि यहाँ like I'm sure all the girls who are watching this video would agree कि जब कोई भी प्रेग्नेंट होती है उसको कहते हैं बस तुम बेड रिडन हो जाओ और तुमने कुछ नहीं करना और काम पे तो जाना ही नहीं है, और मैटरनिटी लीव, everyone still ask me कब कर रही हो लीव। मेरी 1 जुलाई से लीव स्टार्ट हुई है बेसिकली, बट आई वाज इन जिम टुडे, ही वाज ऑन लीव। I go to gym for myself, क्योंकि इस स्टेज पे आके when your pelvic floor basically hip के around muscles होते हैं, ठीक है, वो बेबी को throughout 9 months होल्ड करते हैं, ठीक है। now it's the time to relax that muscles. अच्छा, एक और बड़ी important चीज़ है कि a lot of girls obviously यहाँ बहुत ज़्यादा है कि C section की तरफ भी जाती हैं, but most of the girls want a normal delivery. So what would tips and tricks would you tell them कि normal की तरफ कैसे जाए? I myself have experienced कि I was active and I used to do exercises जितनी मुझे आती थी और जितनी मैं YouTube से देख सकती थी, so वो मेरे reasons थे towards the normal delivery. So what would you tell them? I want to highlight 3 points here. पहली बात तो ये कि I am active, I was doing exercises, इसकी 100% श्योरिटी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। क्यों? क्योंकि एट द स्पॉट मेडिकल कंडीशन क्या हो सकती है नहीं पता, ठीक है। आपने आई वॉज एक्टिव क्योंकि मुझे अपनी जो पूरा साल के 9 मंथ्स थे, बिग स्पैन, उसमें अपने आप को कैसे कैरी करना है। इफ मदर इज हैप्पी, बेबी विल बी फाइन, ठीक है, इन वॉर्म एंड आउट वॉर्म एज वेल, ठीक है। तो जो सी सेक्शन है वो एक आपका माइंडसेट ही होना चाहिए कि यस आई हैव टू प्रिपेयर माय बॉडी। एक और बड़ी इससे मुझे इंपॉर्टेंट बात याद आई है कि ये बहुत ज़्यादा होता है कि देखिए फिजिकल हेल्थ तो हम बात कर रहे हैं, बट द हार्मोनल चेंज जो हम ऑल गो थ्रू, जिसमें दिल करता है किसी को मार दो या किसी को कुछ कर दो, तो उसको यू थिंक कि विद द फिजिकल एक्सरसाइज वी कैन मैनेज दैट एज वेल? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। आपके बेबी को वो जाएगा जो आपके ब्लड में, बेबी टेक फूड फ्रॉम ब्लड, ठीक है। व्हेन यू डू एक्सरसाइज, ठीक है, एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। आपके इमोशन से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अगर एड्रेनलिन ज़्यादा है, these are the hormones जो आपके आपके हार्ट रेट इंक्रीज को करते हैं, बट देयर इज अ रीज़न जहाँ पे हम लोग अपने अपने आप को जिसमें क्रेविंग्स है, ठीक है, मीठे की क्रेविंग है, आपके माइंड में है ना, माइंड से दैट्स नॉट योर स्टमक क्रेव, दैट्स योर माइंड क्रेव, ठीक है। कि आपने जो है वो एक ब्राउनी खानी है, ठीक है, आपके माइंड में है।
अगर मैं थी ना तो हाँ। मैं उस तरीके से मैंने खाई है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार आई एम गिविंग दिस ब्राउनी दैट्स जस्ट शुगर, ठीक है, एंड टू माय बेबी जो कि ब्लड से जाएगा उसको हाई ग्लूकोज, ठीक है, उसको हाँ। अफेक्ट करेगा। तो आई वाज वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू ऐड बेरीज इन माय योगर्ट, ब्लेंड इट एंड फ्रीज इट। सो अक्सर एक और बड़ी एंड पे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। सो यू आर ऑल्सो अ फिटनेस कोच, राइट? सो उस कोचिंग के दौरान जो एक कोई मोटिवेशनल it won't be like a motivational quote or something, but something you would actually say to the audience जिसके through all the mothers who are who are going to be mothers और जो अभी भी mothers हैं उनको एक आप क्या एक ऐसी बात कहोगी जिससे everyone will be relaxed and happy? एग्जैक्टली, मैं एक एडवाइस भी करना चाहूँगी, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट होता है, यू गेट प्रिपेयर फॉर दैट। Yeah. कोई भी शादी है, That's ठीक है, आप उसके so लिए true. prepare करते हो, ठीक है, और इट्स अ कंप्लीट मैराथन। इसका एंड रिजल्ट आएगा 9 months of delivery। Yeah, so in order to have like a good pregnancy and in order to have a healthy baby, you need to be mentally happy and physically happy. And to do that, obviously आपको अगर आपने if your body requires you to go for a physical exercise आपको करनी चाहिए, और अगर कुछ mental consultation है तो वो भी आपको require करनी चाहिए. मेंटल हेल्थ Yes. प्रोपोर्शनल टू योर फिजिकल। आप अच्छे नहीं लग रहे हो मिरर में, यू लुक फैट, अब फन मूड खराब हो Yeah, जाता है। exactly. हो जाता है, बिल्कुल हमारा भी हो ऐसे ही, जाता है। हाँ. ऐसे मतलब नहीं है बिल्कुल भी। इट्स लाइक कि हाउ यू सी योरसेल्फ, आपकी फिजिकल इमोशनल आपस में Synchronize होती है. synchronize Yeah. होती है। Okay, so Aksa, I think it was a very good discussion and इससे पहले मुझे ऐसी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी बट मेरा टाइम अब खत्म हो गया. I had 2 babies alhamdulillah. So this is for all the young mothers जो अभी हैं, और please just look at this video and if you want to talk to her or if you want to have an appointment with her, so she's working at Iron Box. एंड आप अक्सा अली, यस अक्सा अली के नाम से आपका इंस्टाग्राम डॉक्टर फिटनेस बीस्ट। Oh yes, sorry, Dr. Fitness Beast के नाम से है. So please go, you can follow her and you can send a message if you want to ask her something. So I'll see you in the next episode. Take care, bye bye.